Hello everyone, I am Dr. Tarika Sharma and I welcome all of you on my channel Psychology by Tarika. So today is our first lecture video and this is the about introduction of psychology. What is psychology, what it includes and what it studies. So now before we begin to the literary definition of psychology, there is a very common myth I would like to share with all of you. So whenever laymen hear this word psychology, they have this image in mind. It is about either the mental disorders or there is some talk session going on, there is some client, there is some therapist, या फिर hypnosis. But let me tell you that psychology is not only restricted to mental disorders and their treatment. Of course, it is a part of psychology, but psychology holds more than that. साइकोलॉजी में ऐसे बहुत सारे सब डिसिप्लिन्स आते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड दैट व्हाट डज साइकोलॉजी मीन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लिटरेरी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, सो इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. वन इज साइकी एंड द अदर वन इज लोगोस. साइकी मीन्स सोल and logos means study. So basically अगर conclude करें या sum up करें तो study of soul is called as psychology, जिसको थोड़े टाइम के बाद इस soul word को रिप्लेस कर दिया गया mind से. And now this is a primitive definition of psychology. Why it is a primitive definition? So there is a very important thing I would like to tell you कि till 1870s, psychology was part of philosophy. Yes, वो एक individual discipline नहीं था, उसको philosophy के अंडर ही स्टडी किया जाता था. तो इसलिए ये जो definition है कि psychology is the study of soul, it came from the philosophical thinkers who were dealing with psychology at that time. But then there came an important revolution. In the year 1879, psychology dissociated from philosophy and established itself as an independent discipline. Now let's know more about it. So there are two important milestones happened in the 1870s. One is this. In the year 1879, Wilhelm Wundt established the first psychological laboratory. First psychological laboratory where at Leipzig University, Germany. And he called himself as psychologist. और यहाँ से साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की जैसे जानी जाने लगी. नाउ व्हाट डज साइंटिफिक डिसिप्लिन मीन्स? साइंटिफिक डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जब हम बात करते थे कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज अबाउट सोल, साइकोलॉजी इज अबाउट माइंड, सो दोज कॉन्सेप्ट्स वर एब्स्ट्रैक्ट. हम माइंड की चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते थे, हम उन्हें किसी ग्राउंड पर प्रूव नहीं कर सकते थे. बट जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ फिनोमिनन्स को प्रूव करने के लिए टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, मेजर्स होते हैं, जहां पर हम फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं, उन्हें जस्टिफाई कर सकते हैं और उसके बेस पर हम थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं. एंड एज यू ऑल कैन सी दैट नाउ साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज अ साइंस, सो इट इंक्लूड्स ऑल द डोमेन्स. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि not only the university got established in Germany, but after a few years, in the year 1883, another milestone happened and it was done by G. Stanley Hall. He established the first psychological laboratory in USA at Johns Hopkins University. And let me tell you one thing.
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे जस्ट कीप हैव दिस थिंग ओनली इन देयर माइंड कि 1879 का ही उनको अचीवमेंट जो है वो याद रहता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1870s के बाद साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ जर्मनी में नहीं, यूएसए के अंदर भी इस्टेब्लिश होने लग गई थी। एंड विल्हेम वुंड को हम फादर ऑफ साइकोलॉजी के नेम से भी जानते हैं, बिकॉज ही वॉज द वन हु प्रोपाउंडेड द एंटायर थिंग। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग केम आउट ऑफ इट कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की फॉर्म में स्टैब्लिश हो गया है। तो सर्टेनली साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसके अंदर भी चेंजेस आ गए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द करंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। So now if I say what psychology is, so I will say that psychology is the scientific study of behavior, mental processes and experiences. Now this is considered as the most appropriate definition of psychology. Now as you can see, I have already told you that what does scientific means, यानी कि हम कुछ फैक्ट्स के बेस पे हमारे फिनोमिनन्स को प्रूव कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं और उसके बेस पे थियरीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। Now 3 important terms that came out of it is, one is behavior. Now what do we mean by behavior? Behavior क्या होता है? Now many of the time we say behave करना is behavior, but that certainly it is not the meaning that what does the word mean. So behavior simply means that our response to a situation, right? यानी कि किसी situation में हम कैसे respond करते हैं, हम कैसे act करते हैं, वो हमारा behavior होता है। अब इसमें हम कह सकते हैं लिखना, पढ़ना, बैठना, playing, writing and so many activities that we do. This response, it happens in presence of a stimulus. So we can say that response to a stimulus is known as behavior. Now when we talk about behavior, so behavior is basically includes two major categories. One is the overt behavior and another one is the covert behavior. Now overt behavior is something which is observable, यानी कि जो हमें किसी के behavior को देखकर बहुत आराम से पता चल जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर सपोज कीजिए मेरा रिजल्ट आता है और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम सिंगिंग विद जॉय, आई एम जस्ट जंपिंग हियर एंड देयर, आई एम हगिंग माई फैमिली मेम्बर्स, आई एम शेयरिंग दिस न्यूज़ टू एवरीवन. So I am doing something in response to something and that is visible from my behavior. So that kind of behavior is a overt behavior जो easily हम देख सकते हैं. या किसी ने अगर हमें प्रवोक किया और हमने गुस्से में उसको कुछ बोल दिया या हमने गुस्से में किसी को मार दिया. सो दीज आर द साइंस ऑफ द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो हमें डायरेक्टली किसी की पर्सनालिटी में या किसी के बिहेवियर में देखने को मिल जाते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कोवर्ट बिहेवियर तो ये डायरेक्टली नोटिसिएबल नहीं होता. नोटिसिएबल का मतलब ये है कि इट विल बी मोर इन द हिडियस फॉर्म, जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा या फिर लेटेंट हो जाएगा या किसी और फॉर्म में जाकर वो हमें दिखेगा. जैसे कि अगर मान लीजिए जिस पे गुस्सा आ रहा है उस पे गुस्सा ना निकाला गया, उस गुस्से को हमने उस टाइम होल्ड कर दिया, घर जाके किसी और पर निकाल दिया या किसी और तरीके से उस अग्रेसिव एनर्जी को हमने वेंट आउट कर दिया या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. सो दैट इज इंक्लूडेड इनटू द कोवर्ट बिहेवियर. तो समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली विजिबल बट समथिंग विच इज देयर एंड इट कैन कम इनटू डिफरेंट फॉर्म. Now when we talk about mental processes, now this is a very important concept when it comes to psychology. Because psychology revolves around the mental processes. और mental processes क्या होते हैं? Mental processes वो processes हैं जिसमें हम mental activities में involve होते हैं, यानी कि thinking, problem solving, रिमेंबर करना, लर्न करना, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना. तो जितने भी आपकी चीज़ें आपके कॉग्निशन से रिलेटेड होती हैं, साइकोलॉजी के अंदर हम कॉग्निशन वर्ड को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल प्रोसेसेस. सो इट इंक्लूड्स योर थिंकिंग, इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, पेइंग अटेंशन,
मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ थिंग्स, जिसे हम परसेप्शन भी बोलते हैं, right? So these all are the part of mental processes. So in psychology we often use the term cognition and we can use the term cognitive processes as well. Now the third important thing is when we talk about experiences. क्या होते हैं experiences? हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार ये वर्ड यूज़ करते हैं एंड आपने हमेशा एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी लोग अपने एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं दे ऑलवेज से इट्स फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने जितनी बार भी इस एग्ज़ाम्स को दिया है या इसकी प्रिपरेशन की है, मेरे साथ हमेशा ये हो जाता है कि मेरी तो तैयारी कभी टाइम पर नहीं होती, मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, या मैं जब भी इस ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ वो कभी भी मेरी स्किन को सूट नहीं करता है, या आई डोंट फील लाइक इन मेकिंग मच फ्रेंड्स बिकॉज आई फील माई प्रिवेसी इट गेट्स हिंडर. सो नाउ ऑल दीज थिंग्स दैट व्हेन पीपल से कि वो उनके एक्सपीरियंसेस से आ रही है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं. सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है जो पर्सनल होते हैं, जो हमने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपनी लाइफ में एक्वायर किए हैं. बट ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंसेस सिर्फ सब्जेक्टिव होते हैं, एक्सपीरियंसेस ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो कॉमन होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करें या प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम पैंडेमिक की बात करें, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ये है कि सब लोग फिजिकली, इमोशनली, मेंटली डील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, एक लॉस हो रहा है एंड दैट इज़ अ वेरी कॉमन एंड ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, राइट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्टिविटी, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं पर्सनली इस पैंडेमिक से अपने लेवल पर कितना मेंटली सफ़र कर रही हूँ, दैट विल बिकम माई ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर एम्बेडेड होते हैं. कॉन्शियसनेस को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस. तो एक्सपीरियंसेस हमारी अवेयरनेस में होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग. जिससे हम अवेयर नहीं होंगे, वी सर्टेनली कैन नॉट ब्रिंग इट आउट इन द कॉन्वर्सेशन, और इवन वी डोंट नो दैट वी हैव बीन like dealing with it something, or we have been going through something. So now if I say what psychology is, so yes, it includes the behavior, it includes mental processes and it includes our experiences. तो अगर इनसे हम कंक्लूड करें तो साइकोलॉजी के अंदर क्या की एलिमेंट्स निकल कर आते हैं. सबसे पहली चीज़ तो ये कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक फील्ड है, यानी कि हम थ्योरीज और फैक्ट्स पर उसको प्रूव कर सकते हैं. साइकोलॉजी नेवर एंटिसिपेट्स, राइट, बट इंस्टेड व्हाट साइकोलॉजी डज, साइकोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन एंड देन इट ट्राइज टू फाइंड व्हाट आर द कॉजेस, और उसके बेस पे वो इसके फ्यूचर के प्रेडिक्शन कर सकती है. हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे, तब आपको इसके बारे में और अच्छे से पता चल पाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you find this video informative, then like my video and subscribe to my channel. I'll keep bringing more informative videos for you. Till then, stay home, stay safe, take care. Thank you.